नमस्कार सहाने सर. Good morning, Manisha ma'am, Amit sir. So at the outset, let me Recording stopped. thank our speaker of the day, Santosh Sahane sir, Manisha ma'am, and then Amit sir. So on behalf of our president, Shri Dilip Bhai Sangani, and Chief Executive Dr. Sudhir Mahajan, Deputy Chief Executive Srimati Savitri Singh madam. So we welcome you all in these पैक्स टू बी पैक्स, बहुउद्देशीय पैक्स और मल्टीपर्पज पैक्स के वेबिनार सीरीज में मैं सभी पार्टिसिपेंट का भी यहाँ पे वेलकम करता हूँ. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विथ अस. एंड कि आज एक्चुअली हमारे पैरेलल 3 वेबिनार्स चल रहे हैं इन एनसीयूआई. वन ऑन Recording in progress. कॉप मिलेट रिनाइसेंस पे. मिलेट्स का जैसे आप सभी को पता है काफी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अचीव कर. Naveen, I hope I am audible. Naveen? Yeah, you are audible. Just a Okay. little bit of this thing disturbance is there sometimes. Okay, fine. Thank you. Core members, that is state cooperative unions. So because of which, we can see the number of participant less, but nevertheless, the recording will be shared with all the registered participant. So yes, so PACS to BPACS. So now, आप सभी को ये पता होगा कि now we have a Ministry of Cooperation at the center, Ministry of Cooperation since 6th July 2021. And since during last 2 years, many initiatives have been undertaken by the ministry, and NCUI being an apex body, basically we are working in close coordination with the ministry to implement all those initiatives at the ground. And as an apex body, our core mandate is to educate members. So around 30 crores farmers are associate and members basically associated with 8.5 lakhs of cooperative. और पैक्स एक फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन है at the village level. So the journey of cooperative movement in India started with the PACS only as a credit cooperative society. और आज की डेट में इंडिया में 1,26,571 PACS है. And then now, after formation of the ministry, now we have that kind of a database, national cooperative database, जो हम कह रहे हैं. So now we know in which village, which types of cooperatives are there. And then accordingly, वो एक गैप्स आइडेंटिफाई किया है. एंड देन उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनरेबल मिनिस्टर का ये विश है कि कैसे हम जहां पे पैक्स नहीं है वहां पे नए पैक्स स्टार्ट करें. जहां पे डेयरी नहीं है, क्योंकि डेयरी एक अलाइड सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री सेक्टर है टू एग्रीकल्चर, तो वहां पे डेयरी स्टार्ट करें. एंड नाउ डेज बिसाइड्स मराइन एरियाज, नाउ वी हैव इनलैंड फिशरीज आल्सो. तो जहां पोटेंशियल है तो कैसे हम फिशरीज कोऑपरेटिव भी प्रमोट करें. तो इन फर्स्ट फेज दीज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव का फॉर्मेशन का प्लान है. राइट. सो एंड देन व्हेन आई एम सेइंग पैक्स, तो पैक्स चूंकि फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन है, ऑल फार्मर्स आर एसोसिएटेड विद इट. And since 1932, we have been talking about कि PACS should diversify their business activity. PACS should be act as a multi-purpose institution because farmers का सिर्फ credit ही requirement नहीं है. There are other initiative, there are other requirements, and then with the overall developmental scenario, तो उनके needs भी evolve होते जा रहे हैं. But एक conducive environment नहीं था, एक ecosystem develop नहीं हुई थी. But अभी now That's what the priority of this ministry कि सबसे पहले उन्होंने पैक्स के मॉडल बाइलॉज बनाए. और मुझे ये बताने में बहुत ही हर्ष होता है कि 31 states and UTs have already accepted these PACS model bylaws, and वो more than 25 plus business activities अभी PACS कर सकती है. तो अभी 2003 onwards ये जो हमारा नया मॉडल आया FPO FPC, तो पैक्स फंडामेंटली हमारे एफपीओ है, राइट, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है. तो
अभी फोकस ये दिया जा रहा है कि कैसे हम इस पैक्स को मल्टीपर्पज करें। तो जस्ट क्विकली जो हम जानते हैं, बट द न्यू कमर्स, न्यू पार्टिसिपेंट, फॉर देयर information, I'll just quickly give some facts figure why basically now we are talking about multi-purpose packs or बहुउद्देशीय packs, and then I'll just quickly highlight the business activity mentioned in the model bylaws. तो जैसे फैक्ट्स फिगर हम देख रहे हैं, दिस इज द काइंड ऑफ ब्राइटर साइड ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. So we have overcome those ship to mouth economy and now we are surplus country. So facts figure tells us more than 200% production increase हुआ है, right? In which cooperatives ने काफी pivotal role play किया है, and that's what we are calling green, blue, white revolution. But जब हम another side of coin देखते हैं, तो across these different commodities, from farm gate to consumer, we are losing 92,000 crore rupees, and I see this is the indirect money of our Indian farmers only. So सिफेट लुधियाना का जो पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये एस्टिमेट किया. And now I would like to drag your attention on milk. So the percentage of loss is 0.92, probably because of the kind of dairy cooperative movement which we have, the Amul model, which was replicated pan-India, and then now we have state-specific brands, right? So how we can have a commodity specific value chain. So since 2003 onwards, then this FPO model came, and in there basically now we are giving more focus on commodity specific value chain. So both through cooperative model and through farmer producers company model. And then you are also very much aware now, startup is also buzzword now. Many startups are coming up. So those startups who are into agri-tech space, 80% of the startup are into supply chain only because they see this kind of a potential in this sector. So I think this facts figure tells us we need to have a commodity specific value chain. We need to have a forward linkages well in place so that basically we can you can give a remunerative prices to our Indian farmers. Just quickly, these are the 7 golden principles based on which all the community-based enterprises are, they are basically, practicing these principles, mainly cooperatives, and then FPO model is also based on these 7 golden principles. But I would like to focus more on, since we are now talking about business, so would like to focus more on member economic participation. Unfortunately, एक perception ऐसा है, FPO में भी हमने वो देखा है कि member सिर्फ share ले लेता है और उसको लगता है कि मेरा काम हो गया है. But share is just like, it's a kind of a ritual basically to get admitted and be as a owner and then user of that cooperative and FPO. But कितना हद तक हम उसको transaction कर रहे हैं, कितना हम services avail कर रहे हैं. अमूल क्यों बना? Because अमूल का क्राइटेरिया है मिनिमम 800 लीटर्स ऑफ मिल्क एक डेयरी किसान ने अपने सोसाइटी को देना चाहिए. दैट्स हाउ द एक्टिव मेंबर का कंसेप्ट आया, एंड देन अकॉर्डिंगली उनको वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. पैक्स में भी है कि कौन मेंबर बेसिकली उसको कंसोलिडेटेड वे में वो क्राइटेरिया नहीं है, बट जिस ईयर में पैक्स का इलेक्शन है तो उसके पहले ईयर में जो भी क्रॉप लोन लिया होगा किसानों ने, तो कितने किसानों ने वो क्रॉप लोन लौटा दिया है, वही किसान एलिजिबल होते हैं फॉर वोटिंग, एंड वही किसान वो खड़े रह सकते हैं फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो ऑल दीज थिंग्स. तो इसलिए इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस, अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा है कई बार कोऑपरेटिव FPO स्पेस में, खैर अभी वो आया नहीं है दौर, बट कोऑपरेटिव में हमने देखा है कि ये मेंबर्स जनरली ऐसा कहते हैं कि इस प्रिंसिपल को इक्वेट करते हैं विद गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस. गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस का वो है ही नहीं इस प्रिंसिपल का मतलब. ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस का मतलब है कि हाउ फार एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एज अ ओनर, आपका फाइनेंशियल पे कंट्रोल है. हाउ फार यू आर कंट्रोलिंग योर फाइनेंसेस, right? How far you are able to read your balance sheet. This same applies to FPO also. And then to become independent, how far you are diversifying your business portfolio and then increasing your revenue streams, right? So that's what the real meaning of the autonomy independence. So now with this background, basically why there is a thought on packs to act as a multi-purpose pack. So those facts figures are very well, tells us yes, we need to have a commodity specific value chain. So since the packs are primarily a credit institution, काम करते थे, there are very packs, 10% packs जो उनके अलग अलग
credit and financial related products and services है. There are some packs who are into input shop है और अलग अलग एग्रीगेशन ट्रेडिंग में भी वो काम करते हैं. तो उसको थोड़ा सा एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए अभी ये कहा गया है कि पैक्स अभी ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिट दे सकते हैं, वेदर इट इज शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, राइट. They can act as a banking agent also. They can provide insurance facility. There are so many central state government schemes उसके वो as a catalyzing agent facilitate कर सकते हैं, and locker facility भी दे सकते हैं. So this is about the credit and financial related portfolio which was very well established, but yes, focus is more on नॉन क्रेडिट एक्टिविटीज. तो ऑलरेडी हमने ये बैकवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड लिंकेजेस पे हमारे डिस्कशन हो चुके हैं इन आवर प्रीवियस वेबिनार सीरीज, इसी प्रीवियस लेक्चर्स बेसिकली ऑफ दिस पैक्स टू बी पैक्स वेबिनार सीरीज, जहां पे हमने बैकवर्ड लिंकेज कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, क्या क्या वो बिजनेस एक्टिविटीज कर सकते हैं, कैसे एक्चुअल में सीड प्रोडक्शन कस्टम हायरिंग सेंटर पैक स्टार्ट कर सकता है. काफी इलेबोरेटिव, वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन फ्रॉम द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड फ्रॉम प्रैक्टिशनर, एंड पैक्स और एफपीओ के भी मेंबर हमने इनवाइट किए थे, सो दे कैन टेल अस बेटर कि हाउ इफेक्टिवली वी कैन डू दिस बिजनेस एक्टिविटी. Secondly, we also, today, I think yesterday, on 8th, we had a discussion on this aspect, and today also we are going to have a discussion on this segment, this category, that is allied agriculture sector. तो हमारे सारे किसान जनरली कोई ना कोई अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, बट उसको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह वो नहीं देखते हैं. इट इज मोर ऑफ ऑन जस्ट सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री रोल के तहत ही वो एग्रीकल्चर को कंट्रीब्यूट करता है. बट जैसे फैक्ट्स फिगर और ये ओवरऑल डेवलपमेंट सिनेरियो को देखते हुए ऑलरेडी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एक सेपरेटली मिनिस्ट्री कार्व्ड आउट किया, द वे दे डिड फॉर कोऑपरेशन. सो लॉन्ग बैक दे डिड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल्स हस्बेंड्री एंड डेयरिंग आल्सो. सो कैसे हम पैक्स लेवल पे ये छोटे मोटे जो बिजनेस एक्टिविटीज अलाइड सेक्टर में किसान करते हैं, कैसे उनका भी हम एग्रीगेशन पैक्स लेवल पे करें और उनका भी कैसे हम बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस स्ट्रेंथन करें. तो उसके लिए भी पैक्स अभी काम कर सकती है, और उसी के लिए ऑन बी कीपिंग एंड देन ऑर्गेनिक रिलेटेड आज हम चर्चा करेंगे. हम हमारे स्पीकर हमसे जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं. ये भी एक बड़ा कोर कंपोनेंट है जो हम कहते हैं कि 7th प्रिंसिपल, कंसर्न फॉर कम्युनिटी. तो एक दायित्व बनता है कोऑपरेटिव का, बिकॉज कोऑपरेटिव वर्क्स फॉर बोथ, फॉर प्रॉफिट के लिए भी वो काम करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए भी काम करते हैं. तो कैसे हम कम्युनिटी एज अ मेंबर एंड एज अ कम्युनिटी कैसे हम अपने सोसाइटी के नीड्स एंड इंटरेस्ट को कैटर कर सकते हैं. तो इसी के लिए they can either start the grocery shop at the village level. They can also have a LPG and then petrol diesel pump. Nowadays काफी climate change, green energy हम promote कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल सोलर पैनल्स हम लगा रहे हैं, हाउस होल्ड पे हो या चाहे इरिगेशन वेल के लिए कर रहे हैं. तो कैसे हम इन सारे इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोचेस को पैक्स लेवल पे हम कन्वर्ज करें एंड देन एज अ कलेक्टिवली उस इश्यूज को और इस नीड को फुलफिल करें. दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंट business activities or the service driven business activities included in the model bylaws. Besides, हमने देखा है कि गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी होते हैं, अलग अलग सर्विस प्रोवाइड आशा वर्कर्स होते हैं, बट कैसे हमारा पैक्स हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, जो भी स्कूल्स होते हैं गांव में, उनके कोलैबोरेशन के साथ कैसे एक अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं, ताकि लोग जो यूथ है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं, वो समझ जाए कि भाई कोऑपरेटिव नाम की कोई चीज है, राइट. तो वो इस तरह से एक जो कम्युनिटी कनेक्ट जो एस्टेब्लिश करना है और यूथ से जो कनेक्ट करना है, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट. तो उसके लिए ये कहा गया है कि पैक शुड आल्सो वर्क इन कोलैबोरेशन विद द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड विद द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज. डेटा सेंटर का मतलब है कि पैक्स के पास, चूंकि ये एक वायबल इंस्टीट्यूट है विलेज का, तो उनके पास बिजनेस रिलेटेड भी सारे डेटा होना चाहिए कि भाई कितने एक्टिव मेंबर है, कितने पैसिव है, कितने ऐसे मेंबर है, किसान है वो स्टिल हमसे जुड़े नहीं है, तो क्या उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है. तो ये हुआ पैक्स के कोर बिजनेस रिलेटेड. बट बिसाइड्स दैट
इन द कम्युनिटी देर आर सम बीपीएल फैमिलीज, मे बी बीपीएल कैटेगरी में उनका नाम नहीं है, तो कैसे पैक्स वो रोल प्ले कर सकती है कि लोगों पे उनके राइट्स एंड एंटरटेनमेंट्स वो दे दे। तो उससे क्या है ना, एक कनेक्ट होगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द building trust and then having that kind of solidarity so that this institution can emerge as the viable institution। तो ये एक प्रयास है बेसिकली। एंड देन नाउडेज टूरिज्म सेक्टर, एग्रो टूरिज्म, एग्रीकल्चर में हम देखेंगे तो कैसे हम पैक्स लेवल पे उस बिजनेस को कर सकते हैं। आपको ये बताने में मुझे और ये हर्ष हो रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, कॉमन सर्विस सेंटर, जो ई गवर्नेंस रिलेटेड सर्विसेज एक्सटेंड करता है, मोर देन 300 सर्विसेज, वेदर इट इज आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट एंड ऑल। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन हैड एमओयू विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी, और ये डिसाइड किया गया कि पैक्स कैन आल्सो एक्ट एज अ सीएससी सो दैट दे कैन प्रोवाइड ऑल दोस सर्विसेज। तो ये कन्वर्जेंस अभी हो रहा है। सो इसके ऊपर भी हमारा डिटेल में डिस्कशन रहेगा 12th को। कहा कि फ्यू पैक्स इन दिस सदर्न बेल्ट ऑलरेडी उनके डीजल पेट्रोल पंप थे, बट वो एक होलसेल रेट पे कर रहे थे। बट मिनिस्ट्री आने से देन नाउ मिनिस्ट्री हैज मीटिंग द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, एंड देन दे हैव कम प्लान की पैक्स भी रिटेल बेस पे डीजल पंप और पेट्रोल पंप डीलर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हमारा डिटेल में डिस्कशन रहेगा टुमारो। ग्रीन एनर्जी, जैसे मैंने कहा, सोलर पैनल्स, तो इंडिविजुअलिस्टिक सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम है पीएम कुसुम, स्टेट गवर्नमेंट के भी कई सारे ग्रीन एनर्जी रिलेटेड प्रोग्राम्स है। तो उसके रिलेटेड ऑलरेडी हमारे पास एक वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर कोऑपरेटिव है इंडिया में, दैट इज द धुंडी सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव, जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। उसका ऑलरेडी हमने एक गुड प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट किया है, एफएओ ने उसको पब्लिश किया है, सो दैट आई विल शेयर इन आफ्टर माय रिमार्क्स इन द चैट बॉक्स सो दैट यू कैन गो थ्रू। तो ऑलरेडी हमारे पास एक बेंचमार्क है, बस उसको रेप्लिकेट कैसे हम पैक्स लेवल पे कर सकते हैं, ऑन विच बेसिकली करंटली वी आर वर्किंग। एंड देन देयर आर अदर इनिशिएटिव, जैसे अभी मैंने कहा कि एफपीओ का प्रमोशन भी चल रहा है, तो एनसीडीसी के थ्रू अब ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे पैक्स कैन एक्ट एज ए एफपीओ, कैसे पैक्स अगर पोटेंशियल है, कोई कमोडिटी मेजरली ग्रोइंग उस एरिया में है, तो कैसे सेपरेटली एफपीओ प्रमोट किया जाए वहां पे। तो ऐसे 1100 एफपीओ पैक्स प्रमोट कर रही है एनसीडीसी के हेल्प के साथ में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्रोग्राम का भी अनाउंसमेंट किया है अभी रिसेंट लास्ट ईयर बजट में, जहां पे 4-5 स्कीम्स ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज उसको होल गवर्नमेंट अप्रोच यूज करके कन्वर्ज किया है। एंड देन ऑल दोज नाउ फंड विल रूट टू पैक्स। पैक्स लेवल पे हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जा रहे हैं, ऑलरेडी उसका पायलट इन सम स्टेट्स चल रहा है, ताकि एंड देन फर्दर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू एक्रेडिटेशन भी करने का काम चल रहा है, एंड ई वेयर हाउस रिसिप्ट का बेनिफिट्स भी वो ले सकते हैं। सो इसके ऊपर भी आई थिंक हमारा कल ही डिस्कशन रहेगा ऑन दीज न्यू इनिशिएटिव्स व्हिच कैन विल बेनिफिट द पैक्स। पैक्स एज अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी काम कर सकता है, जैसे मैंने कहा कि इनपुट शॉप है कई पैक्स के, राइट, उसी इनपुट शॉप को वो पीएम किसान समृद्धि केंद्र में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सो दैट जो बेनिफिट्स पीएम केएसके को मिल रहे हैं वो बेनिफिट्स पैक्स को भी अभी मिलना शुरू हो जाएंगे। जन औषधि केंद्र, डे बिफोर यस्टरडे ओनली इन विज्ञान भवन का ये प्रोग्राम रहा, जहां पे जिन जिन लोगों ने जन औषधि केंद्र के लिए, पैक्स ने जिन लोगों ने जन औषधि केंद्र के लिए अप्लाई किया था, सो मोर देन 1000 पैक्स को वो अलोकेशन किया है। जस्ट लास्ट स्लाइड, दिस इज द काइंड ऑफ इनोवेटिव इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री, कि हमने ये देखा कि ये जो अभी ओवरऑल डेवलपमेंटल सिनेरियो है उसमें अभी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अचीव करना है, तो काफी बज़वर्ड अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग पे है, ट्रेसेबिलिटी पे है, तो उसमें कोई कोऑपरेटिव स्पेस में कोई बिजनेस एंटिटी नहीं थी, तो इसलिए एक नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, और वो ऑर्गेनिक लिमिटेड देन जितने भी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स है, पैक्स है, उनको बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगी। सर्टिफिकेशन के लिए कई सारे इश्यूज है, दो देयर आर वेल एस्टेब्लिश एनपीओपी है, कई सारे अथॉरिटीज है, बट एट द ग्राउंड लेवल सपोर्टिंग मैकेनिज्म नहीं है, तो ये मल्टी स्टेट उसके लिए काम करेगी।
हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से वी नीड टू हैव अ क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी, क्वालिटी सीड्स चाहिए। तो आईसीआर, स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन, सॉरी स्टेट कोऑपरेटिव, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, दे आर वर्किंग इन दिस स्पेस। सो बिजनेस एंटिटी पर से कोई नहीं थी, तो ये भारतीय बीज सहकारी समिति का एस्टेब्लिशमेंट किया है, जहां पे आईसीआर और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन भी इसके प्रमोटर है। और उसके चलते अभी जितने भी पैक्स हमारे एफपीओ सीड प्रोडक्शन में है, उनका बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज स्ट्रेंथन करने के लिए ये मल्टी काम करेगी। बिसाइड्स एक्सपोर्ट में हम जान रहे हैं कि देयर इज अ कार्टेल बेसिकली। तो वो हमारे कई सारे पैक्स है, कई सारे कोऑपरेटिव्स है, ऑल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड एफपीओ जो एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज का प्रोडक्शन करते हैं, बट वो ब्रेक नहीं कर पाते हैं डिस्पाइट वी हैव अथॉरिटीज एंड ऑल सो एंड सो फोर्थ। बट कोई बिजनेस एंटिटी नहीं थी, जैसे मैंने कहा। तो ये नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एस्टेब्लिश किया है। तो जो भी कोई कोऑपरेटिव है, कोई भी टाइप्स कोऑपरेटिव, वेदर इट इज हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, वो इसका मेंबरशिप ले सकती है।